پاکستان کی سربراہی میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے اجڑنے والے متاثرین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ پاکستان تاریخی نہج پر کھڑا ہے، ان کی مدد کا کہہ رہا جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر پر منعقدہ جنیوا کانفرنس میں وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مشکلات سے عالمی برادری کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تاریخی تباہی ہوئی، بلوچستان کے کئی حصوں میں اب بھی سیلابی پانی موجود ہے، ان کی مدد کا کہہ رہا جن کے پاس سیلاب سب کچھ چھین کر لے گیا۔ I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ 30 ارب ڈالر سے زائد ہے، جو جی ڈی پی کا 8% ہے۔ سیلاب نے 90 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا۔ I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کا کڑے وقت میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام اینتونیو گوتریس کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور مشکل میں مدد کرنے والے ممالک کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ I thank you once again for your support in this conference today. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سیلاب سے خوراک کی قلت نے جنم لیا، انہوں نے سیلاب متاثرین کو بحال کر کے اچھے مستقبل دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ جنیوا میں جاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری کا حجم بہت زیادہ ہے، تاہم پاکستان اپنے دستیاب وسائل سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء سے یہ بھی اپیل کی کہ جلد از جلد سیلاب متاثرین کی بحالی ایک بڑا مشن ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے ہماری معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں، زراعت، لائف سٹاک اور انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت متاثرہ ہر شخص کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ اسحاق ڈار نے بھرپور تعاون پر عالمی برادری کا شکریہ بھی ادا کیا۔ The widespread damages caused by the floods in Pakistan. Last year, the heavy monsoon rains, 6 times of the average of the past 30 years, caused huge flooding and devastation, especially in the provinces of Sindh and Balochistan. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاری کا حجم بہت بڑا ہے، متاثرہ علاقوں میں امداد و بحالی کا کام جاری ہے، 5 ماہ بعد بھی ملک کے کئی علاقے زیر آب ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح بنیادی ڈھانچے کی تعمیر ہے، متاثرین کی بحالی کا آدھا کام پاکستان اپنے وسائل سے کرے گا۔ کانفرنس عالمی برادری سے طویل المدتی شراکت داری ہے۔ 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب سے 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، جن کی آبادکاری کے لیے حکومت اپنے دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں آج بھی سیلابی پانی کھڑا ہے، جہاں پر متاثرہ افراد کی مدد کی ضرورت ہے۔ Pakistan has faced floods in 2022, but as one of the most vulnerable countries to climate disasters, we face range of disasters that we experienced during 2022, starting with very high temperatures.
वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया, जहाँ पर 2 सूबों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लोगों की मकानात और फसलें तबाह हुई। सैलाब की वजह से होने वाला नुकसान का तखमीना बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को अकेले इस नुकसान को पूरा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर और बहाली पर बैन अवी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा कि मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। आज अक़वाम आलम पाकिस्तान से यकजहती के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान में हर 7 में से 1 शख्स सैलाब से मुतासर हुआ। हम अपने वसाइल बरोकार लाते हुए लोगों और इलाकों की बहाली के लिए कोशां हैं। जनीवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने खिताब किया और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद के अज़्म का इजादा किया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने बहादुरी से सैलाब से तबाही का मुकाबला किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। फ्रांस के अवाम और हुकूमत मुश्किल में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो किसी और मुल्क को भी हो सकता है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मुश्तरका काम करने की अशद जरूरत है। सैलाबी तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को फौरी इमदाद चाहिए। फौरी $1 करोड़ देंगे। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को हर शोबे में मुश्किल का सामना करना पड़ा। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि मुश्किल हालात में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करते हैं। सैलाब के फौरी बाद तुर्किया हुकूमती वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। तुर्किया ने पाकिस्तान को फौरी इमदाद के साथ नुकसानात का जायजा लिया। पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात से आलमी बरादरी को आगाह किया। तख्ते लाहौर की जंग, वजीर आला आज एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, सब मुंतजर। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास 2 घंटे 49 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमती अरकान की जानिब से राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी जारी है। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहा। वज़ीर आला ने वही किया जो इमरान खान के मामले पर डिप्टी स्पीकर ने किया था। ख्वाजा साद रफ़ीक की तनकीद, कहा वज़ीर आला के पास वोट पूरे नहीं, एतमाद के वोट के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन की बजाय कंसेंसस हल है। आप अपनी टर्म पूरी करें ना। आपके पास केपी की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, गिलगित बिल्तिस्तान है, कश्मीर है। आप वहाँ पे डिलीवर करो, हमें भी काम करने दो। इलेक्शन में अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके आएंगे। लेट पीपल शुड डिसाइड कि वो किसको वोट देते हैं। पर इलेक्शन से पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा, बशमूल पीटीआई के। जैसी तैसी भी वो सियासी कुव्वत है। हमें एक मिनट जी, हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम उन्हें अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ये क्राइसिस ओवर होने की तरफ जाएगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर कप्तान भी मुतारिक हो गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में अहम बैठक हुई, जिसमें मरकजी क़यादत को पंजाब का महाज संभालने का टास्क सौंप दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने असद उमर और हमाद अजहर समेत दीगर को पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा कि कौमी असम्बली से कबल पंजाब असम्बली पर तवज्जो मरकूज की जाए। इजलास में दो टोक फैसला हुआ कि हमें पंजाब में अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाना है। पंजाब का सियासी महाज एक बार फिर गर्म होने को तैयार। मुस्लिम लीग नून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। लीगी क़यादत ने हमजा शहबाज को फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कल लंदन से बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंचेंगे और वापस आकर फौरी तौर पर अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। हमजा शहबाज गुज़श्ता माह के आगाज़ में लंदन गए थे। इमरान खान के इलेक्शन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी फैसला कल ही सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस का फैसला कुछ अर्सा कबल ही महफूज किया गया था। सजाद काज़मी से तफसीलात जानेंगे। सजाद, बताइएगा। है बिल्कुल, तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले में इमरान खान और दीगर जो उनके अहम कायदीन हैं, जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर शामिल हैं,
इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इसके हवाले से कल फैसला सुनाया जाएगा। इससे कबल भी देखने में आया था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिसमें हुक्म इम्तना जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट की तरफ से लिया जाता रहा है उसको कलअदम कराने का जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हक दिया था कि आप इस वक्त जो ऐसी बॉडी हैं कि जो अपने ऑन पर जो है समाअत भी कर सकता है और इस हवाले से फैसला दे सकता है। तो जिसके बाद इसकी हवाले से समाअतें होती रही, ताहम तीनों रहनुमाओं में से कोई भी किसी समाअत में भी पेश नहीं हुआ। फवाद चौधरी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, और इसी तरह जो असद उमर हैं वो भी फ्लाइट लेट का कहकर जो है पेश नहीं हुई। इस तरह इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि उनकी डॉक्टर इजाज़त नहीं देते कि वो जो है बेड रेस्ट को छोड़ सकें। इस वजह से तीनों जो रहनुमा हैं वो पेश नहीं हुए और इस हवाले से समाअतें होती रही और अली बुखारी जो है वो पीटीआई के तीनों रहनुमाओं को जो है मुख्तलिफ औकातकार में रिप्रेजेंट करते रहे। अब इस हवाले से फैसला जो महफूज किया गया था उसको कल सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर्स फहरिस्तों पर कराने से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का फैसला सुना दिया। इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के रिमार्क्स में कहा कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की इस्तदा मंजूर कर ली। जमात इस्लामी ने हर सूरत 15 जनवरी को इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात और दोहरी इलेक्टोरल फहरिस्तों के मामले पर MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज किया गया था। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान MQM ने कहा, फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जमात इस्लामी के फैसले का खैर मकदम अवाम की फतह करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर MQM पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतखाबात से कबल धांधली करार दे दिया। तर्जुमान मुत्तहिदा पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। जाली हल्का बंदियों से शहरी सिंध की 1/4 आबादी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रह गई। शहरी इलाकों की नुमाइंदगी जाली तरीके से छीनने की साजिश की गई। जाली हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट के जरिए धांधली हो चुकी। तनाज़ा तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुतसबाना फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालतों से इंसाफ न मिला तो अवामी अदालतें फैसला करेंगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम उर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि MQM और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। सूबाई हुकूमत मजबूरी में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हुई। हाफिज नईम का मजीद कहना था कि इनके पास आखिरी हरबा धांधली का रह गया है। ये एक दूसरे को धांधली से फायदा पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत अरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है, 15 जनवरी को सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं, लिहाजा सिंध में रेंजर्स को दूसरे दर्जे और फौज को तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाए। खत में लिखा गया है, इलाके की हसासियत और किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाए। पोलिंग स्टाफ को RO ऑफिस से बैलेट पेपर्स की पोलिंग स्टेशन तक तरसील के लिए सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाए, जबकि वोट की गिनती और बैलेट पेपर्स की RO ऑफिस से वापसी के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं, दोनों हुकूमती जमातों की कोशिश थी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होने जा रहा है। 15 जनवरी को ये कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे। कराची और सूबे के जो भी हालात हैं उसकी जिम्मेदार जरदारी माफिया है। सिंध में 75% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं।
सिंध हाई कोर्ट ने MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत के मामले पर MQM के बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम अपीलें यकजा कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं, इस्लामाबाद शहर फेडरेशन का हिस्सा है, इसे सबसे एडवांस होना चाहिए। किसी भी हुकूमत ने शहर पर तवज्जो नहीं दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम अपीलें यकजा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद शहर फेडरेशन का हिस्सा है, इसको सबसे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम अपीलें यकजा कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद शहर फेडरेशन का हिस्सा है, इसे सबसे एडवांस होना चाहिए। किसी भी हुकूमत ने शहर पर तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। DG ला, इलेक्शन कमीशन, एडिशनल अटार्नी जनरल, नून लीग और PTI के वकला अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला इनकी दरखास्त पर किया गया, मगर उन्हें नोटिस ही नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर आप ही की दरखास्त पर फैसला किया गया तो आपको नोटिस करना चाहिए था। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, मगर एक्ट तब होगा जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो। अभी तो सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। ज्वाइंट सेशन होगा तो ही इस मामले पर कुछ हो सकता है। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम अपीलें यकजा कर दी। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि सारी अपीलें यकजा कर ली गई, मुझे कुछ चीजें देखनी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत को मुतमईन करना है कि यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल को केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 19 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। बल्दियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद MQM की फुर्तियां। ज़राए के मुताबिक MQM अहम रहनुमाओं का अहम इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। तफसीलात अता हुसैन से जानेंगे। अता बताइएगा। जी देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बाद MQM की फुर्तियां जो है वो शुरू हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक MQM के अहम रहनुमाओं की अहम बैठक आज गवर्नर हाउस में लगेगी, जबकि ज़राए ने ये भी दावा किया है कि मुतनाज़ हल्का बंदियों के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। जाड़े ने रंग जमा लिया। मलका कोहसार, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों और पहाड़ों पर चांदी उतर आई। सियाहों का तांता बंध गया। मरी से कश्मीर और दीरबाला से गिलगित बल्तिस्तान तक तहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। हर मंजर जादुई हो गया। आसमान से उतरते रुई के गालों ने मौसम दिल फरेब बना दिया। सवात ने चांदी की चादर ओढ़ ली। कालाम और मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लग गए। पहाड़ नकराई हो गए, हर सू सफेदी छा गई। सवात के खूबसूरत सियाहती मकाम मालम जब्बा में सियाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए और खूब हल्ला गुल्ला किया। चित्राल में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पाराचनार और दीरबाला के बलाई इलाकों समेत लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद बलाई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। दयामीर के बलाई इलाकों, नागा पर्वत, गोहराबाद और दीगर बलाई वादियों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने मलका कोहसार मरी के मनाजिर दिलकश बना दिए। सियाहों की तो मौजें ही लग गई। आसमान से रुई के गाले गिरे तो जिला अस्तूर, गांचे और खपलोक ने चांदी की चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर पारा मनफी हो गया। बलोचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में जहां नज़ारे हसीन हुए, वहीं बर्फ से मुश्किलात बढ़ गईं। पहाड़ों के मकीन घरों में कैद होकर रह गए। गैस और बिजली न होने से सर्दी में मुश्किल और भी बढ़ गई। आसमान से रुई के गाले गिरे तो जिला अस्तौर ने चांदी की चादर ओढ़ ली।